تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پانی جیسی نعمت عطا کی، جس کے ذریعے دلوں کو سیراب کر کے انہیں پاک و صاف کیا اور زمین میں پانی کی نہریں چلائیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، لغزشیں اور خطائیں جس کے پس پردہ چھپی رہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسی گواہی کہ جو کائنات میں عام ہو کر پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان سے بارش کی بوندیں برستی رہیں۔ حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے اعمال کو احسن طریقے سے انجام دو اور موت سے پہلے پہلے توبہ کی طرف جلدی کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے وحقہ ڈرو اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، پانی خالق کریم کا ایک تحفہ ہے جسے وہ نازل کر کے مخلوق کی سیرابی کا سامان مہیا کرتا ہے، جو تسلسل کے ساتھ برستا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، جو قوت کے ساتھ موسلا دار بارش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زمین اس سے سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس کے رفتہ رفتہ برسنے سے باغیچے لہلہا اٹھتے ہیں، جو ٹیلوں اور تودوں پر آبپاشی کرتا ہے، جو نباتات، جڑی بوٹیوں اور چوپایوں کو حیات بخشتا ہے، مخلوقات کو سیراب کرتا ہے۔ پانی کی سرایت کرنے سے اس کی شفافیت عیاں ہوتی ہے، اس کے برسنے کے بعد اس کا اجلا پن اور شفافی نکھر جاتی ہے۔ سیرابی، مٹھاس اور فروانی اس کے ثمرات و فوائد میں سے ہے، اور ہر مشروب جو صاف و شفاف، اجلا اور میٹھا بھی ہو وہ بے مثال و بے نظیر ہوتا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اور پانی جب نفوس کے لیے آب حیات ہے تو اہل عرب استعارے اور کنائے کے طور پر اپنے کلام میں ہر اس چیز کے لیے پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو دیکھنے میں بھاتی ہو اور قابل قدر و منزلت ہو تو اسے یوں پکارتے ہیں، مثلا چہرے کا پانی، جوانی کا پانی، نعمتوں کا پانی، شرم و حیا کا پانی اور آب حیات وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، جس کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ مسلمانوں، پانی پلانا رحمت و شفقت کی علامت، احسان و بھلائی کی نشانی اور بابرکت صدقہ ہے، جس کی سیرابی روحوں کو پاکیزہ و طیب بنا دیتی ہے، جس کے قطرے نفوس کو جلا بخشتے ہیں۔ اور حاجیوں کو پانی پلانا تو اہل عرب کے قابل ذکر اور فخریہ کاموں میں سے تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون و مال سے متعلق جاہلیت کے تمام زبان زد عام فخریہ کارنامے میرے پاؤں تلے ہیں، سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی دربانی کے۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنت میں روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، پانی پلانے کی فضیلت، عظمت اور اس عمل کی قدر و منزلت کے تعلق سے صحیح احادیث وارد ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے، لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کام کرتے رہو، تم ایک اچھے کام پر لگے ہو۔ پھر فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اس میں اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھتا، یعنی کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طریقے سے پانی پلانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ مسلمانوں، گرمی اور سردی ہر موسم میں ہی پانی پلانا مستحب ہے، لیکن گرمی کی شدت اور گرم لو کے تھپیڑوں میں اس کے استحباب میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پانی پلانا، اس کے ذریعے صدقہ کرنا، تر و تازہ کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا، پیاسے سینوں کو سیراب کرنا، جنہیں پیاس کی حرارت و آگ نے آن لیا ہو، خالی صحراؤں میں پیاسی مخلوق کو بچانا اور گرمی کی حدت و شدت والے دنوں میں پیاسے نفوس کی مدد کرنا افضل ترین صدقات اور جلیل القدر عبادت میں سے ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر و ثواب کے اعتبار سے پانی سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ نہیں ہے۔ اسے امام بحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں تو کون سا صدقہ مجھے کرنا چاہیے، میرے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पानी का सदका, चुनाचे कुआं खुदवाया और फरमाया कि ये साद की माँ की तरफ से सदका है। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। और तबरानी औसत के अल्फाज कुछ यूं हैं कि उन्होंने पूछा अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो उसे कोई फायदा पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ, पानी ही के जरिए सदके को लाजिम पकड़ो। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी को शक लाहिक हो गया लेकिन उनका गालो गुमान यह है कि ये मरफू हदीस ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के 360 जोड़ या हड्डियां हैं, हर जोड़ की तरफ से रोजाना सदका जरूरी है। हर अच्छी बात सदका है, आदमी का अपने भाई की मदद करना सदका है, पानी पिलाना भी सदका है, नीज रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना भी सदका है। इसे इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में रिवायत किया है। और अबू सर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने डोल से अपने भाई के डोल में तुम्हारा पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। इसे इमाम तिरमिज़ी ने जामे में रिवायत किया है। और इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसमें भी अजर है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। और सुराका बिन जोशम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन भटके हुए ऊंटों का मसला पूछा जो मेरे हौज पर आए, जिसे मैंने अपने ऊंटों के लिए बना रखा है, तो क्या मैं उन्हें पानी पिलाऊं तो मुझे अजर मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ, हर तर जिगर रखने वाले में अजर व सवाब है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स रास्ते में चल रहा था, उसे शदीद प्यास लगी, उसे एक कुआं मिला, उसने उसमें उतर कर पानी पिया। जब बाहर निकला तो वहाँ एक कुत्ता देखा जो हाँफ रहा था और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा था। उस शख्स ने कहा ये कुत्ता भी तो उतना ही ज्यादा प्यासा है जितना मैं था। चुनाचे वो फिर कुएं में उतरा, अपने जूते में पानी भरा और मुंह से उसे पकड़कर ऊपर लाया और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या हमें जानवरों के साथ नेकी करने में भी सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें हर तरोताजा कलेजे वाले के साथ नेकी करने में अजर सवाब मिलता है। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इमाम आइनी फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि पानी पिलाना अजीम तरीन इबादत में से एक है। बाज़ ताबईन का कहना है कि जिसके गुनाह ज्यादा हो जाए उसे पानी पिलाने का अमल अंजाम देना चाहिए। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले के गुनाह माफ हो सकते हैं तो एक मोमिन को पानी पिलाने के मुतालिक क्या ख्याल है जिसे पानी पिलाकर हशाश व बिशाश कर दिया गया हो। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब प्यास की शिद्दत वाले कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला पिलाने वाले के गुनाह माफ कर सकता है तो प्यासे मुसलमानों को पानी पिलाने, भूखे मुसलमानों को खाना खिलाने और बेलिबास मुसलमानों को लिबास पहनाने का अजर कितना होगा। मुसलमानों, जब तुम प्यास बुझा देने वाला साफ, शफाफ और मजेदार पानी नोश करो तो फकीरों मस्कीन मुसलमानों को भी याद कर लिया करो जो पानी जैसी अजीम नेमत से महरूम इलाके में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोगों को भी याद रखा करो जिन्हें बदबूदार गदला पानी नसीब होता है, जिसकी बू की वजह से कोई उसे नोश करने पर आमादा नहीं होता, जिसका रंग और जायका तब्दील हो चुका है। और जब तुम अपने घरों में पानी की टूटियां चलाओ जिनसे रवानी के साथ पानी साफ शफाफ हलक से उतरने वाला वाफर बहता है तो उस वक्त उन लोगों को भी याद कर लिया करो जो पूरा दिन, पूरी रात, बल्कि इससे भी ज्यादा पानी की तलाश में सफर करते रहते हैं। और उन लोगों को भी याद कर लिया करो जिन्हें खुश्क साली और सूखे कुओं ने अपने घर और बस्तियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है, उनकी ऐश व हयात तकलीफ रसा, सख्ती और तंगी और फसादी और खराबी की नजर हो चुकी है। वो एहसान व भलाई करने वाले अहले खैर की तरफ प्यासी नजरों से देख रहे हैं कि कोई उनके लिए पानी का इंतजाम कर दे तो जाइए, उनकी जानें बचाइए और उनका ताउन और उनकी मदद कीजिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत फरमाएगा ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझसे पानी पीने के लिए कुछ मांगा था तो तूने मुझे नहीं पिलाया। वो कहेगा ऐ मेरे रब, मैं कैसे आपको पिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तू ये नहीं जानता मेरे फुला बंदे ने तुझसे पीने के लिए कुछ मांगा तो तूने उसे नहीं पिलाया? क्या तू ये नहीं जानता अगर तू उसे पिलाता तो उसका अजर मुझसे पाता। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। फुकरा व मसाकीन, मोहताज व नातवा और आजिज व बेबस लोग जो अपने पानी के बिल अदा करने की सकत नहीं रखते और पानी के बगैर उनका चारा कार भी नहीं है तो उनके बिल अदा करना भी सदका है और ये पानी पिलाने में ही शामिल है। मुसलमानों, पीने के पानी के लिए खास करना अमूमी इंतजाम करके उन्हें वक्फ करना, मसलन कुएं खुदवाना, पानी के हौज बनाना और आम ठंडे पानी के कूलर लगाकर उन्हें वक्फ करना, पानी को साफ करने और फिल्टर करने के लिए खास जगह बनाकर वक्फ करना, फुकरा व मसाकीन के घरों और मोहल्लों तक पाइपलाइन बिछाना, पानी की बोतलें तकसीम करना, चौराहों, रास्तों, बाजारों और मसाजिद वगैरह में पानी तकसीम करना, ये सब जलील कदर इबादत में से है। जैसा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेर रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ कर दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था जिसने बेर रूमा खोदा उसके लिए जन्नत है, और फरमाया जो शख्स बेर रूमा को खरीदे अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। चुनांचे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने उसे खरीद लिया। बुखारी, तिरमिज़ी और निसाई ने इसे रिवायत किया है। इसमें कुएं वगैरह के तरीके से वक़्फ करने की फजीलत का बयान है। चुनांचे अनस रज़ी अल्लाह तआला
का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों का अजर इंसान को उसकी मौत के बाद भी मिलता रहता है जब वो कब्र में होता है। जिसने इल्म सिखाया, या कोई पानी की नहर जारी कर दी, या कुआं खुदवाया, या कोई खजूर का दरख्त लगवा दिया, या कोई मस्जिद बना दी, या मुसहफ लेकर वक़्फ कर दिया, या उसने अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ी जो उसकी वफात के बाद उसके लिए इस्तिगफार करे। इसे बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पानी के लिए कोई जमीन खोद कर इंतजाम किया और उससे कोई प्यासे जिगर वाली मखलूक, जिन हो, इंसान हो, या कोई भी परिंदा पी लेता है तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे उसका अजर अता फरमाएगा। इसे इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। पानी के बहाव के रास्तों से हैवानात सैराब होते हैं जब वो महसूस करते हैं कि प्यास उन्हें सता रही है। परिंदे उसके पास आकर सरगोशियां करते रहते हैं और उस पानी के इर्द गिर्द नबातात और अंगूरियां और खेत होते हैं। मैंने जो कुछ बयान किया आपने सुना। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी तलब करें। इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए फौज़ व फलाह और कामयाबी है। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने जिसे चाहा उसे अपने लुत्फ़ व करम की चादर में ले लिया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, जो बीमारियों से मायूस लोगों पर इनाम व एहसान करते हुए उनके लिए दवा और इलाज का बंदोबस्त कर देता है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनकी पैरवी करने वाला शख्स हिदायत के रास्ते पर गामजन हो जाता है और उनकी नाफरमानी करने वाला ज़लालत व गुमराही और हलाकत व तबाही के गड्ढे में जा गिरता है। मुसलसल और हमेशा दुरूद व सलाम नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और सहाबा किराम पर। मुसलमानों, तकवा इलाही इख्तियार करो, उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में रखो, उसकी इताअत करो और नाफरमानी से बचो। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों में से हो जाओ। मुसलमानों, जिसके अपने कुएं में पानी उसकी और उसके अहलो अयाल, मवेशियों और खेतों की हाजत और जरूरत से जायद हो तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो उसे बगैर मुआवजे, कीमत और सौदेबाजी के किसी और के लिए सरफ कर दे। बाज अहले इल्म ने तो इसे मुस्तहब से बढ़कर वाजिब तक करार दे दिया है। जैसा कि शायर का कौल है, जायद पानी को खर्च करना शरई तौर पर लाजमी है, हत्ता कि खेती की आबियारी के लिए ही क्यों न हो। ये उस वक्त है जब उसका चश्मा कुआं ज़ाती हो, पानी लेने वाला मालदार हो या कंगाल व तंगदस्त हो। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत से शायद पानी फरोख्त करने से मना फरमाया है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नोश करने वालों में से मुसाफिर सबसे मुकद्दम है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इसका माने यह है कि जब कुआं का मालिक पानी से अपनी हाजत और जरूरत पूरी कर ले तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो मुसाफिर को उससे रोके। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 तरह के वो लोग हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नजर भी नहीं उठाएगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में जरूरत से ज्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे दे तो राजी रहे मगर ना खफा हो जाए। तीसरे वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हो और कहने लगा कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही है। इस पर उस शख्स ने उसे सच समझ लिया। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। और सही बुखारी की एक रिवायत के अल्फाज यूं है, अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं अपना फजल उसी तरह तुम्हें नहीं दूंगा जिस तरह तुमने एक ऐसी चीज के फालतू हिस्से को नहीं दिया था जिस पर तेरे हाथों ने काम तक न किया था। राह रास्त दिखाने वाले, मखलूक की सिफारिश करने वाले अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो, क्योंकि जो उन पर एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाएगा। ऐ अल्लाह, हमारे नबी और सरदार रहमत और सवाब की खुशखबरी देने वाले, अज़ाब और इकाब से डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम नाज़िल फरमा, जो रोज़े क़यामत साहिब शिफाअत होंगे, जिनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ऐ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और असहाब पर रहमत नाज़िल फरमा और उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ऐ करीम, बहुत ज्यादा अता करने वाला। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा फरमा, दीन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा। तमाम मुस्लिम ममालिक और हमारे मुल्क सऊदी अरब के खिलाफ साजिश करने वालों की साजिश, मकर करने वालों के मकर और फरेब, बुग़्ज़ और हसद रखने वालों के बुग़्ज़ और हसद से इसे महफूज फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, हमारे पेशवा खातिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और उन्हें नेकी और तकवा के कामों की तौफीक अता फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, उन्हें और उनके वली अहद को इस्लाम की तक़वियत और मुसलमानों की इस्लाह के काम सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी फौज और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों को आफियत अता फरमा, हमारे फौज शुद्गान की मग़फ़िरत फरमा, दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर बारान रहमत का नुज़ूल फरमा और हमें ना उम्मीदों में से ना करना। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमारी पुकार को मंजूर फरमा। ऐ इज्जत वाले, अज़मत वाले और निहायत रहम करने वाले अल्लाह।